dream job and career in the US और vacations पे travel to the beautiful locations in Europe. ये सब हमारा सपना होता है, right? I have been lucky. I got a chance to work and live in both of these beautiful locations. And after a combined duration of over 10 years across Europe and US, which one do I choose and why? Hello friends and welcome back to my channel, The Happy Host. आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माई एक्सपीरियंसेस ऑफ लिविंग अक्रॉस यूएस एंड यूरोप और मेरे ओपिनियन में एज एन इंडियन लिविंग अब्रॉड मुझे क्या लगा, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच लोकेशन. I wish to share with you my experiences and opinions on 5 different topics across both of these locations. Firstly, how we stay connected with our families back in India. Secondly, what are the job opportunities and career prospects, again, in each of these locations? Thirdly, how does the cost of living compare in Europe versus America? Fourthly, how does the quality of life compare between America and Europe? And fifth is how are Indian needs, the needs for Indian community, needs for Indian essentials, our Indian way of life, how does that compare between Europe and America? But before I get into that discussion, a little bit of background about me, which can set the context. I'm a Bengali, born and brought up in India. And I started my first job with the State Bank of India at their headquarters in Kolkata. Within a few years, after a stringent selection process, I was posted at their US headquarters in New York. That was a posting of 3 years, and after spending 3 years in New York, I came back to India. इंडिया में बैंक में थोड़े साल मैंने काम किया और उसके बाद आई रिज़ाइन फ्रॉम द बैंक और मैंने आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिया. इसके साथ मैं आ गई बैंगलोर एंड फ्रॉम देन बैंगलोर हैज़ बिन माई बेस लोकेशन एंड माई सेकेंड होम. आईटी इंडस्ट्री में मैंने एज अ बैंकिंग कंसल्टेंट काम करना शुरू किया और इस जॉब के थ्रू मैं आई यूरोप मोर देन 7 years ago. एज यू नो, यूरोप इज़ अ ग्रुप ऑफ मोर देन 40 countries और मैं रहती हूँ स्वीडन में, जो है यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में. सो आई हैव बिन लिविंग इन स्वीडन्स कैपिटल स्टॉकहोम एंड आई ट्रैवल अक्रॉस यूरोप ऑन वर्क. तो अमेरिका में 3 साल और यूरोप में 7 साल में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ एज एन इंडियन अब्रॉड, तो इसके बारे में लेट मी शेयर सम ऑफ माई ओपिनियंस विद यू. नाउ व्हाइल आई शेयर माई एक्सपीरियंसेस, just a word of caution, I do not mean to discourage anybody about anything. These are just my own experiences. और क्योंकि हर एक के गोल्स अलग होते हैं, प्रायोरिटीज़, प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, सबके अपने अपने चैलेंजेस भी होते हैं, तो इसलिए मैंने अपना कॉन्टेक्स्ट बताया. बिकॉज फॉर मी माई डिसीजन इज सेंटर्ड अराउंड माई फैमिली, माई गोल्स, माई प्रायोरिटीज़. So this discussion is just meant to give you an idea of what to expect in either America or Europe, so that, you know, when you're looking out for these options, you can keep these things in mind. First thing that I would like to talk about is how we stay connected with our families back in India when we are in America versus when we are in Europe. तो जैसे मैं अपने बारे में बता रही थी, my parents live in India. वो कभी भी मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर पाए. दे कुड नॉट विजिट मी एनीवेयर ड्यूरिंग दीज 10 years ऑफ माई स्टेइंग अब्रॉड. उनकी एज हो गई है एंड दे हैड हेल्थ इश्यूज ऑल्सो. इस वजह से वो हमारे साथ कभी तो ट्रैवल नहीं कर पाए हैं. बट आई हैव मेड श्योर टू स्टे कनेक्टेड विद देम एज मच एज पॉसिबल. फ्रॉम अमेरिका, जैसा आप जानते हैं, टाइम जोन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. मैं न्यूयॉर्क में रहती थी ऑन द ईस्ट कोस्ट, तो 9.5 to 10.5 hours डिफरेंस होता था. तो उसमें मुझे मॉर्निंग में 2-3 hours एंड इवनिंग में 2-3 hours ही मिलते थे फॉर स्पीकिंग टू देम, कनेक्टिंग विद देम. और डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा है, सो इवन इफ़ यू टेक अ फ्लाइट, इफ़ आई एम रिक्वायर्ड सडनली, अगर मुझे जाना पड़ा, तो द ट्रैवल टाइम वुड ऑल्सो बी क्वाइट लॉन्ग. एटलीस्ट 20-21 hours was the travel time from New York to India. So my location would either be Bangalore or Kolkata. Now, from Europe, now that I'm based in Sweden,
So both of these are slightly more comfortable. जैसे टाइम जोन डिफरेंस 3.5 to 4.5 hours का ही होता है. So from the time I wake up in the morning, say 7:30 in the morning, till in the evening 7:30 in the evening, I stay connected with my parents. क्योंकि वो जब तक सोने जाते हैं मैं तब तक उनके साथ कनेक्टेड रह पाती हूँ. इन टर्म्स ऑफ द ट्रैवल डिस्टेंस, वो भी अमेरिका से कंपैरेटिवली एज यू नो काफ़ी कम है. और if I take a flight from Stockholm to either Bangalore or Kolkata, मैं यहाँ दोपहर के 3-3:30 यहाँ स्टार्ट करती हूँ. आई रीच होम बाई 8. आई लैंड इन दोज लोकेशंस इन इंडिया बाई 8-8:30 इन द मॉर्निंग. तो ट्रैवल टाइम भी काफ़ी कम हो गया है. तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ऑफ लिविंग इन यूरोप. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, दैट इज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड करियर प्रॉस्पेक्ट्स. ये तो हम सबको पता है दैट यूएसए प्रोवाइड्स द बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड करियर प्रॉस्पेक्ट्स. वहाँ चाहे मेरे तरह आप बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करें या टेक्नोलॉजी साइड में काम करें, there are lots of opportunities, and we know that a lot of Indians have moved to US and they are doing very well in these kind of roles. अगर मैं अपनी बात करूँ, as a banking consultant, if I tried, I would have at least, there is a huge market for my kind of a roles, because वहाँ पे वर्ल्ड के सारे लार्ज बैंक्स हैं, स्मॉलर रीजनल बैंक्स हैं, some of the best consulting companies हैं. So given the market size and the opportunity, there are sizable. I cannot say the same about Europe, क्योंकि यूरोप का जॉब मार्केट जो है वो अमेरिका से काफ़ी छोटा है. एंड एज यू नो, यूरोप हैज़ मोर देन 40 डिफरेंट कंट्रीज, और ये सब कंट्रीज़ के जो जॉब मार्केट्स है दे आर वेरी वेरी लोकलाइज्ड. तो जैसे अगेन मैं अपनी एग्जांपल अगर लूँ, एज अ बैंकिंग आईटी कंसल्टेंट, अगर मुझे जॉब ऑप्शंस देखने हो, द बैंक्स इन दिस रीजन्स आर वेरी वेरी लोकल. जैसे हर कंट्री के अपने 2-3 बड़े बैंक्स हैं, एंड देयर आर अ फ्यू स्मॉलर बैंक्स which operate only within a few countries of Europe. Very few of them are actually global in nature. IT consultancy as such are also very boutique consultancy firms, जो again very regional in nature होते हैं. Of course, the large IT giants have operations worldwide, तो उनके offices यहाँ पे भी हैं. But other than that, यहाँ के जो local job options हैं, options are there, but not as big as a US market. So options are there again in your technology role, your other industries as well. Manufacturing is pretty big in Europe. So ये सब industries में भी हैं. And recently, Europe has become a hotbed of a lot of startups. A lot of fintechs are coming up. तो वो सब में भी अगर आपको interest है, so these are also the areas where jobs are coming up quite a lot in Europe. बट यूरोप में एक चैलेंज जो मुझे लगा है इन टर्म्स ऑफ सीकिंग सीनियर रोल्स इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस इज़ द लैंग्वेज बैरियर. मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सीनियर रोल में हूँ, एंड इफ़ आई हैव टू फाइंड अ सिमिलर रोल इन अ लोकल कंपनी हियर, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि व्हाट दे लुक फॉर इज़ समबडी एट अ सीनियर लीडरशिप रोल शुड नो द लोकल लैंग्वेज. तो मैं जैसे 7 साल से स्वीडन में हूँ, एंड आई कैन just read and understand, but I cannot make a conversation in Swedish. तो similarly, अगर आप जर्मनी में हैं तो जर्मन, नेदरलैंड्स में हैं तो डच, इटालियन, फ्रेंच, in other countries and so on. ये सब लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है if you're looking to grow in your career in these countries. Now let's talk about work-life balance. From my experience in New York, मुझे ऐसा लगा कि New York specifically, or US in general, they have a very fast-paced life. People work a lot, बहुत hard working है, and they work for very long hours, and they are very competitive about career growth, जिसके लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं. And stress levels are also equally very high. But when I compare that to what I have seen in Europe, यहाँ work life balance is much better than what I have seen in America. And I have been in Sweden for so long. This is called the happiest corner of the world. जैसा आप जानते हैं, there is this
World Happiness Index, which is released every year. और इसमें I think among the top 10, 8 of these countries are from Europe. यहाँ holidays अमेरिका से बहुत ज़्यादा है. The kind of parental benefits that employees get here are again much more than what I knew in US. All of these benefits at a cumulative level, they ensure that there is a better work-life balance of people in this region. यूरोप में काम करके ही मैंने देखा यहाँ लेबर यूनियंस इतने स्ट्रॉन्ग है एंड दे हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एंड on the workplace conditions. My work-life balance has been much better here in Europe than what I had in America. वहाँ stress levels मेरे बहुत बढ़ रहे थे. And here I have seen that I'm comparatively more calm and peaceful. Let's now discuss the fourth point, that is about cost of living. अब cost of living की बात अगर करें तो we have to think of three things. First is the salary levels. Second, the tax levels. And third, the expenses, because ultimately cost of living is a factor of all these three. So America is a large country, as we know, and there are state-wise variations. Just say taxes are different in different states. In fact, when I was in New York, I recall that there were 3 taxes: federal tax, state tax, and New York City tax. So the state tax is different in every state. So that way, within America also, there will be states which have higher taxes and lower taxes. For me, because I was in New York City, my tax rates were very high. I think among the highest in the country. Now compare that with what we see in Europe. Europe again is a large group of over 40 countries, like we were discussing. यहाँ पे भी कुछ countries हैं जिसकी tax rates बहुत high हैं, जैसे Ireland, Denmark, Luxembourg. They have very high income tax rates. Some others, they have very low. For example, your Poland and Romania and Bulgaria, they have very low tax rates. And then there are some which are somewhere in the middle. For example, your France, Germany, Sweden, Netherlands, ये सब बीच में आता है, जहाँ taxes are neither too high nor too low. So when I start comparing the cost of living between America and Europe, what I will do is मैं बात करूँगी न्यूयॉर्क की, क्योंकि मुझे वहाँ का पता है, मैं वहाँ रही हूँ. और यूरोप में आई विल टॉक अबाउट स्वीडन, नेदरलैंड्स, जर्मनी, अगेन बिकॉज आई एम मोर फेमिलियर विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज कंट्रीज हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा हम जानते हैं कि वेदर इट्स अमेरिका, यूरोप और इवन इन इंडिया, द टैक्स स्लैब्स इंक्रीज एज योर सैलरीज इंक्रीज. तो अगर सैलरी की बात करें, माई सैलरी इन US is higher than the salary that we get in these countries here, Sweden, Netherlands, Germany. So salary levels in America are higher than those in Europe. Now come to the taxes part. Taxes part is reverse, which is surprising. Taxes in Europe are higher than those in America. Of course, I'm just taking an overview level because each state has its own different tax, like I said. And in Europe also, each country has its own different tax structure. But on an average level, salaries in America are higher than those in Europe. And taxes in Europe are higher than those in America. Except for, of course, there are few countries which are looked upon as tax havens, जैसे Switzerland, for example, जहाँ taxes are comparatively lower than the rest of Europe, though the salaries are higher there. Switzerland में salaries बहुत high होते हैं. So this is about the comparison of the salary and the tax. Now comes the cost of living. Cost of living in Europe, again, in general, of course, leaving aside Switzerland, in general, cost of living in Europe is lower than in USA. So I recall I was living in New York. I was living in Queens. ये तो कुछ साल पहले की बात है, but the real estate prices, the rentals in New York have gone up the roof. और मैं जानती हूँ मेरे जो वहाँ फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में काम करते हैं, they don't live in New York anymore. They have shifted and they are now living in New Jersey. और वहाँ से daily commute करते हैं to office. So the house rents are very high there. Comparatively, Europe में, as compared to the salary structure, the cost of living in Europe
is comparatively lower than in America. Buying a house, what I saw is comparatively easier in Europe as compared to America. Loans के जो mortgage rate of interest जो होते थे, they were very low at least 7 years ago when I came here. तब तो बहुत ही कम थे स्वीडन में. Now they are rising, but I still think that comparatively between US and Europe, it's easier to buy a house in Europe. अब बात करते हैं quality of life की. अमेरिका में पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ मच हायर दैन दैट इन यूरोप. ये तो हमको पता ही है बिकॉज पॉपुलेशन इन यूरोप इज़ मच लेसर दैन इन अमेरिका. यूरोप में जो लैंड है वहाँ आई थिंक मोर देन 40-50% इज स्टिल फॉरेस्ट एंड द रेस्ट ऑफ इट इज़ कंस्ट्रक्टेड लैंड. In fact, in Sweden, close to 70% of land is forest land and only the rest of 30% is constructed area. सो यूरोप में इतना फॉरेस्ट कवर होने की वजह से, इतनी ग्रीनरी की वजह से द एयर क्वालिटी इज़ मच बेटर, इट्स मच मोर प्योरर. पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यूरोप हैज़ अ ग्रेट नेटवर्क ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वेदर इट्स विद इन दैट कंट्री और मेनलैंड यूरोप में अगर आप देखें तो अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो देर इज़ अ वेरी गुड पब्लिक नेटवर्क सिस्टम. जैसे इंटरसिटी एक्सप्रेस है, ट्रेन्स है, बसेज है, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड इन मेनलैंड यूरोप. अमेरिका की अगर बात करें, न्यूयॉर्क में द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज फैंटास्टिक. सबवेज जो ट्रेन्स थे, बसेस थे, दे वर ऑल वेरी वेल कनेक्टेड. बट न्यूयॉर्क से बाहर जब मैं गई, व्हेन आई वेंट टू लॉस एंजलिस एंड अ फ्यू अदर प्लेसेस ऑन द वेस्ट कोस्ट, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिखा. सो माई आइडिया इज़ दैट इन अमेरिका ऑल्सो देयर मे बी सम प्लेसेस जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है एंड सम प्लेसेस वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मे नॉट बी देयर. तो वहाँ आपको अपने प्राइवेट व्हीकल के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड करना पड़ेगा. Whereas in Europe, the public transport network is so strong that you will not see a lot of private vehicles on the road. Plus, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ साइकिलिंग भी बहुत इनक्रेज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल बेल्जियम या नेदरलैंड्स अगर आप जाएंगे, इवन जर्मनी फॉर दैट मैटर, आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा फॉर साइकिलिस्ट्स. फॉर एग्जाम्पल रोड और फुटपाथ के बीच में एक साइकिलिस्ट का ट्रैक होगा, फिर ट्रैफिक सिग्नल के साथ साइकिलिस्ट के लिए सिग्नल होगा. जगह जगह पे आपको साइकिल पार्क करने के साइकिल स्टैंड्स दिखेंगे वे यू कैन पार्क योर साइकिल्स और बाइक्स एज दे कॉल देम. एक और डिफरेंस जो मैंने देखा है इन दोनों जगहों पे, दैट इज़ अराउंड चिल्ड्रंस एजुकेशन. ऑफ कोर्स अमेरिका में द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ इंग्लिश एंड द एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव. तो वो आपको अपने करिकुलम के अलावा भी they encourage you to participate in so many other competitions and Olympiads. तो इससे क्या होता है, बच्चों का जो analytical skills होता है and their the knowledge and the depth of a subject that increases widely. Europe में what I have seen is firstly the local schools are all in the local languages. जो government schools होते हैं, these are all in the local languages. तो Indians जो आते हैं उनके बच्चों को अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स चाहिए, सो देर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्कूल्स जहाँ इंग्लिश इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. एंड इवन द कैरिकुलम इटसेल्फ, इट इज़ मोर कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड यहाँ स्टडीज़ का इक्वल इम्पॉर्टेंस दिया जाता है टू लर्निंग लाइफ स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल बच्चों को बिल्कुल छोटे उम्र से, आई थिंक 3-4 साल के बच्चों को भी सिखाया जाता है हाउ दे कैन ईट देयर ओन फूड, हाउ दे कैन गेट रेडी ऑन देयर ओन, जूते कैसे पहनते हैं एंड हाउ दे zip up their clothes and everything. So those are the life skills where they are taught more from a very young age. They are taught swimming, they are taught skating, skiing, sports is encouraged a lot. So it is, again, when I compare between America and Europe schooling is not very competitive. They teach you to understand the concepts और concepts सिखाने के लिए वो students को बाहर लेके जाते. For example, जब उनको वेट्स एंड मेजर्स सिखाना होता है, सो दे टेक दिस चिल्ड्रन टू शॉप्स जहाँ एक्चुअल वो सामान वे करके देखते हैं. तो ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बट मेरे ख्याल से इट इज़ नॉट वेरी कॉम्पिटिटिव एज वॉट आई हैव सीन इन अमेरिका. एज इंडियंस लिविंग अब्रॉड, वी ऑल लाइक टू स्टे कनेक्टेड टू आवर रूट्स. तो हम घर पे इंडियन खाना बनाना पसंद करते हैं,
फंक्शंस पे इंडियन कपड़े पहनना पसंद करते हैं, इंडियन कम्युनिटी के साथ एंगेज करना पसंद करते हैं. सो ऑन दिस पॉइंट इफ आई हैव टू कंपेयर अमेरिका विथ यूरोप, America obviously has a much bigger Indian community than what I have seen in Europe. और अमेरिका में इंडियंस तो बहुत सालों पहले से जा रहे हैं, सो यू विल हैव मल्टीपल जनरेशन्स ऑफ इंडियंस लिविंग इन अमेरिका. तो कम्युनिटी लाइफ में आई नेवर हैड टू लुक आउट फॉर एनीबडी, ऑलवेज देयर वुड बी लॉट ऑफ इंडियंस अराउंड. देयर वर सो मेनी इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स जहाँ मुझे ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती थी. कभी ये नहीं लगता था कि अरे ये तो हम इंडिया में खाते थे, वो यहाँ नहीं मिल रहा है. बट इन यूरोप इंडियन कम्युनिटी है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है जितना हमने अमेरिका में देखा था. और इंडियन ज़रूरत के सामान भी अगेन स्टोर्स मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे अमेरिका में है कि आपको हर गली में मिल जाएगा. यहाँ वैसा नहीं है. यहाँ पूरे स्टॉकहोम में 3 या 4 ही स्टोर्स हैं जहाँ इंडियन सारे जो बहुत स्पेसिफिक इंडियन मसाले, इंडियन वेजिटेबल्स, इंडियन फिश वगैरह ये सब मिलते हैं. ऐसे बहुत ही स्पेसिफिक कुछ स्टोर्स हैं, लेकिन हाँ मिल जाते हैं सब कुछ. मे नॉट बी एट अ वेरी कन्वीनियंट लोकेशन. आपको हो सकता है ट्रेन लेके कुछ आधा घंटा 40 मिनट जाना पड़े, मिल जाता है. इंडियन फेस्टिवल्स भी हम जानते हैं अमेरिका में हर इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है. एंड देर आर ऑल दीज कम्युनिटीज़, वेदर यू कॉल इट बिहारी कम्युनिटी, महाराष्ट्रियन कम्युनिटी, बंगाली कम्युनिटी, ये सब कम्युनिटीज़ are already there and they are very strong in America. यूरोप में भी ये सारे कम्युनिटीज़ हैं, may not be as large as those, but ये सारे कम्युनिटीज़ भी हैं और सभी साथ मिलके सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं. सो इफ़ यू आर इन यूरोप यू विल नॉट मिस ऑन एनीथिंग. बट देन येस, वो जिस स्केल पे आप इंडिया में देखते हैं वो स्केल में तो नहीं होगा. अगर हम परमानेंट रेसिडेंसी या सिटीजनशिप लेने की बात करें, एज वी नो इन US इट इज़ क्वाइट टफ, वेट टाइम इज़ वेरी लॉन्ग. कंपैरेटिवली यूरोप में आपका PR यानी परमानेंट रेसिडेंट या सिटीजनशिप मिलना इज़ कंपैरेटिवली ईजियर. और यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं जो पिछले कुछ सालों में आए हैं एंड दे हैव बिकम इनिशियली PR, उसके बाद सिटीजन्स भी बन गए हैं. So that is one point where I think the ease of getting citizenship, अगर आप interested हैं उसमें, तो ease of getting citizenship is more in Europe compared to US. Again यहाँ पे एक language challenge भी आती है because in some countries they mandated कि अगर आपको citizenship चाहिए then you should know the local language. तो उसके लिए जितने Indians को मैंने देखा है citizenship लेते हुए, when they come they start learning that language. तो जब तक उनकी एलिजिबिलिटी होती है, जैसे कहीं 4 साल है, कहीं 6 साल है, जब भी जो एलिजिबिलिटी होती है तब तक वो उस लैंग्वेज में फ्लुएंट हो जाते हैं, तब तक उस लैंग्वेज. तो इतने सारे पॉइंट्स कंपेयर करने के बाद आई थिंक वी कैन एग्री दैट इफ वी आर लुकिंग फॉर करियर ग्रोथ एंड फाइनेंशियल ग्रोथ, अमेरिका इज़ डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन. लेकिन अगर आप मेरी तरह यू वांट टू फोकस ऑन अ वर्क लाइफ बैलेंस, लेसर स्ट्रेस, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, देन आई थिंक यूरोप कुड बी योर चॉइस. मेरी खुद की प्रायोरिटी की बेसिस पे आई हैव चोजन यूरोप ओवर अमेरिका, क्योंकि दोनों जगह पे रहने के बाद मैंने देखा कि माई लाइफ इज़ बेटर ऑफ इन यूरोप गिवन माई सर्कमस्टांसिस. तो इसके वजह से आई हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू इन यूरोप फॉर अ फ्यू ईयर्स बिफोर आई गो बैक टू इंडिया. ये तो थे मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैंने शेयर किया आप सबके साथ. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू एज वेल. आप भी अपने एक्सपीरियंसेस अगर हम सबके साथ शेयर करें एंड जॉइन इन दिस कॉन्वर्सेशन. और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन, थैंक यू सो मच.